اس درخت کی وجہ سے ہمارے کھیتوں میں ٹھیک سے پانی بھی نہیں پہنچتا، اسے کاٹ کر پانی کا راستہ بنا۔ وڈیرا مجھے مکمل ہدایات دے رہا تھا۔ میں کہنے لگا، ٹھیک ہے سائیں، جیسا آپ کہتے ہیں میں ویسا ہی کروں گا، لیکن گاؤں والے کہتے ہیں کہ یہ درخت بہت پرانا ہے، اس کی جڑیں نیچے زمین کی گہرائی تک پھیلی ہوئی ہیں، اسے کاٹنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ وڈیرا غصے سے کہنے لگا، ایک تو گاؤں والوں کی ان بے سروپا باتوں سے میں تنگ ہوں، تم بس میری ہدایات پر عمل کرو، کوئی تمہیں کچھ بھی کہے تو کہہ دینا کہ مجھے وڈیرے نے درخت کاٹنے کو کہا ہے۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے سائیں، جیسا آپ کا حکم۔ میں ایک تنخواہ دار ملازم تھا اور وڈیرے کا حکم ماننا میرے لیے بہت ضروری، اسی لیے میں اس درخت کو کاٹنے کا مکمل ارادہ رکھتا تھا۔ آج تو رات کا 1 بج گیا تھا، اس لیے میں گھر جا رہا تھا، لیکن کل میرا ارادہ اس درخت کو کاٹنے کا تھا۔ گھر گیا تو اماں میرے انتظار میں جاگ رہی تھی، پھر اس نے مجھے کھانا لا کر دیا۔ میں کھانا کھاتے ہوئے اماں سے باتیں کر رہا تھا۔ میں کہنے لگا کہ اماں، وڈیرا وہ درخت کٹوانا چاہتا ہے۔ یہ سن کر وہ حیران رہ گئی، کہنے لگی، کوئی ضرورت نہیں ہے تجھے وہ درخت کاٹنے کی، اگر تجھے کچھ ہو گیا تو؟ میں حیران ہو کر کہنے لگا، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، بھلا مجھے کیا ہوگا؟ تو اماں رازداری سے کہنے لگی، کیا تجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ اس درخت سے راتوں کو چیخوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں؟ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی تکلیف میں ہو، ضرور وہاں پر کوئی گہرا راز چھپا ہے۔ اس درخت کی ویرانی اور خوفناکی دیکھ کر کیا تجھے نہیں لگتا کہ وہاں کچھ عجیب ضرور ہے؟ اماں مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں ان کی بات سن کر ہنسنے لگا، لیکن صبح تک پورے گاؤں میں یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی تھی کہ سالوں سال پرانا وہ درخت جس کے قریب جانے میں بھی ہر کوئی خوف محسوس کرتا ہے، میں اسے وڈیرے کے حکم پر کاٹ رہا ہوں۔ 3-4 آدمی میرے پاس جمع ہو کر آئے۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ایسا سوچنا بھی مت، دیکھو وہ درخت ایسا ہے جہاں پر کچھ غیر فطری مخلوق آباد ہے، ہمیں پورا یقین ہے کہ اگر وہ درخت تم کاٹو گے تو تم کوئی بڑا نقصان اٹھاؤ گے، اس لیے وڈیرے کو صاف منع کر دو کہ وہ اپنے ارادے سے باز آ جائے۔ اب میں شدید پریشان ہو گیا۔ گاؤں والے مسلسل مجھ پر زور ڈال رہے تھے کہ میں وہ درخت نہ کاٹوں اور وڈیرے سے بات کروں، جبکہ وڈیرے کا کہنا تھا کہ اس درخت کو کاٹنا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ وہاں کی زمین اس درخت کے پھیلاؤ کی وجہ سے بہت زیادہ بنجر ہو چکی تھی، دوسری طرف جو پانی کا راستہ تھا وہ بھی اس درخت کی وجہ سے رکا ہوا تھا، اور وڈیرے کے کھیتوں میں نہر کا پانی صحیح سے آتا ہی نہیں تھا۔ ایسے میں جب میں نے وڈیرے کے سامنے گاؤں کے لوگوں کے خدشات کا اظہار کیا تو وہ کہنے لگا کہ تم ان سب کی باتوں میں مت آؤ، اور اگر تمہیں گاؤں والوں کا اتنا ہی خوف ہے تو تم یہ کام رات کے اندھیرے میں کرو گے، اور تم میرے ملازم ہو، میری بات ماننا تمہارے لیے ضروری ہے۔ وہ مونچھوں کو تاؤ دیتا غصے سے کہنے لگا تو میں بھی سر جھکا کر خاموش ہو گیا۔ اب میں مکمل ارادہ کر چکا تھا کہ میں اس درخت کو لازمی کاٹوں گا، اسی لیے یہ کام دن کو نہیں بلکہ رات کو کرنے کا سوچ رہا تھا۔ میرا نام بشیر احمد ہے، میرا تعلق ایک چھوٹے سے گاؤں سے تھا۔ میں ایک غریب نوجوان تھا، اپنی ماں اور 2 چھوٹی نوجوان بہنوں کے ساتھ گاؤں کے کچے سے گھر میں رہا کرتا تھا۔ میں نے بمشکل میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی، وہ بھی اپنے شوق کی وجہ سے، ورنہ ہمارے گاؤں میں کوئی بھی نوجوان پڑھا لکھا نہیں تھا، کیونکہ ان کی حیثیت ہی نہیں تھی کہ وہ شہر جا کر یا کالج یا یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کریں۔ ہمارے پورے گاؤں میں وڈیرے کا راج تھا، اسی لیے اکثر ہی گاؤں کے نوجوان وڈیرے کے ملازم تھے، جن میں میں بھی شامل تھا۔ میرے گھر کے حالات بہت ہی خراب تھے، ایک میرے اکیلے کی تنخواہ پر گزارا ہوتا تھا۔ اماں کو بھی کئی سالوں سے گردوں کا مرض تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اماں کا علاج شہر کے کسی اچھے ہسپتال سے کروا دوں۔ 2-3 دفعہ میں نے وڈیرے سے کہا کہ وہ مجھے تھوڑے پیسے ادھار دے دیں، بعد میں بھلے میری تنخواہ سے اس کی کٹوتی کر لیں، میں اپنی ماں کا علاج کروانا چاہتا ہوں۔ لیکن وڈیرا کہنے لگا کہ میں گاؤں کے ہر بندے کو قرضہ دیتا ہوں، کس کس کو قرضہ دوں، آ جاتے ہیں لوگ ہاتھ پھیلانے کے لیے۔ وہ غریبوں سے سخت نفرت کرتا تھا، جبکہ ہم ان کے غلام تھے، اس کی بات ماننا مجھ پر فرض تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب اس نے اس درخت کو کاٹنے کو کہا تو میں چونک گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس درخت نے پورے گاؤں میں دہشت پھیلا رکھی تھی۔ اس درخت کے بارے میں مشہور تھا کہ یہاں پر رات کو اکثر چیخوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ کچھ لوگوں نے ایک لمبے لمبے بالوں والی خوفناک لڑکی کو اس درخت کے اوپر بیٹھے ہوئے بھی دیکھا تھا۔
जो अक्सर सफ़ेद लिबास पहनकर उस दरख्त पर बैठी होती थी। जो भी रात को खेतों में पहरा दे रहा होता या पानी की वजह से जाग रहा होता, अक्सर ही उसको वो लड़की दिखाई देती थी। उस लड़की का राज आज तक गांव का कोई भी आदमी नहीं जान सका था। ये कहानी तो मुझे भी मालूम थी, इसीलिए मैं भी बहुत ज़्यादा डर रहा था। उस दरख्त के पास आते हुए मुझे भी खौफ महसूस हो रहा था, लेकिन मैं दिल में सोचने लगा कि क्या पता अगर ये दरख्त काट दिया तो हो सकता है कि वडेरा खुश होकर मुझे कोई इनाम दे दे या कोई कर्जा ही दे दे ताकि मैं अम्मा का इलाज करवा सकूं। यही सोचकर आज रात में कुदाल और 2-3 इस्तेमाल की चीज़ें साथ लेकर खेतों में चला आया था। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। भला रात के 12-1 बजे खेतों में कौन होता। यही वजह थी कि दहशतनाक सन्नाटे को देखकर एक बार तो मेरा दिल भी हौल कर रह गया था। फिर जैसे ही मैंने कुल्हाड़ी से ज़रब लगाई, अचानक ही एक नुस्वानी सिसकी की आवाज़ सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैं दहशत ज़दा सा खड़ा होकर इधर उधर देखने लगा। ये आवाज़ कैसी थी? मुझ पर शदीद दहशत तारी हो गई और मैं वहीं पर साकित खड़ा रहा। फिर उसे अपना वहम समझते हुए मैं दोबारा ज़रब लगाने लगा और फिर से बैंड की आवाज़ मेरे कानों में गूंजने लगी, जैसे कोई रो रहा हो। ये आवाज़ किसी लड़की की थी। मुझ पर जैसे सन्नाटा तारी हो गया। ऐसे लग रहा था जैसे मेरे जिस्म में जान ही ना हो। खौफ से पीला पड़ता चेहरा मुझे अपना अभी से महसूस हो रहा था। तभी मैंने अपना दिल मजबूत किया और कड़कदार अंदाज में पूछने लगा, कौन है यहाँ? कौन है जो मुझे परेशान कर रहा है? अचानक ही एक सिसकी की आवाज़ उभरी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई मेरी बात सुन रहा हो और ये आवाज़ कहीं और से नहीं बल्कि उसी दरख्त के अंदर से आ रही थी। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि गांव वालों ने जो कुछ कहा था वो बिल्कुल सच था। सच में ही गांव के इस पुराने दरख्त पर किसी लड़की का कब्जा है और वो लड़की कोई आम इंसानी लड़की नहीं बल्कि कोई गैर फितरी मखलूक है। ये आने वाली आवाज़ें मुझे खौफ में मुब्तला करके यहाँ से भाग जाने पर मजबूर कर रही थी, लेकिन वडेरे की बात मानना भी ज़रूरी था। इसीलिए अब मैं कशमकश का शिकार था कि इस दरख्त को काटूं या नहीं। फिर जैसे ही कुल्हाड़ा उठाकर ज़रब लगाने लगा, अचानक ही मुझे उस दरख्त के अंदर से आवाज़ आई थी, रुक जाओ, अगर इस दरख्त को काट कर यहाँ से कहीं दूर फेंकोगे तो मेरी ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। एकदम से ही मैं शदीद दहशतज़दा हो गया। ये आवाज़ किसकी है? चारों तरफ पागलों की तरह देखते हुए मैं उस आवाज़ की तलाश में उस लड़की को ढूंढने लगा। तभी मुझे दरख्त की निचली शाख पर बैठी हुई वो लड़की दिखाई दे गई, जो घने दरख्त के नीचे छुपे होने की वजह से अब मेरे सामने आई थी। सफ़ेद रंग का लिबास पहने, लंबे लंबे बाल ज़मीन तक आ रहे थे। मेरा तो जैसे खून खुश्क हो गया। उस लड़की ने आधा चेहरा बालों में छुपाया हुआ था, जबकि आधा चेहरा उसका साफ दिखाई देता था। लेकिन ये आधा चेहरा देखकर यूं लगता कि ये लड़की बेपनाह खूबसूरत है। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? तभी उसने चेहरा उठाकर मुझे देखा और हाथ के इशारे से मुझे अपने करीब बुलाया था। मैं डरता कांपता उसके पास पहुंचा। अचानक ही उसने अपना आधा चेहरा जो बालों से छुपा हुआ था, वो बाल उठाकर उसने मेरी तरफ देखा। मैं उसकी शक्ल देखकर वहां से ऐसा भागा कि मुझे कुछ होश ही नहीं था। न जाने मैं घर कैसे पहुंचा था। पीछे से मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझे आवाज़ें देकर रोकने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मैं सरपट दौड़ता हुआ घर आ गया था। घर का दरवाज़ा खुला हुआ था और अम्मा मेरे इंतज़ार में जाग रही थी। मुझे यूं पसीना पसीना देखकर वो खौफज़दा हो गई, जबकि मैं चादर ओढ़कर लेट गया था। मैंने आज खाना भी नहीं खाया। अभी तक मुझे वही लड़की याद आ रही थी। उसका आधा चेहरा तो बहुत खूबसूरत था, लेकिन आधा बिल्कुल ही मुख्तलिफ। ये कैसे हो सकता है? मेरे जहन में अभी तक उसी का चेहरा छाया हुआ था। अब मुझे यकीन हो गया था कि इस दरख्त को काटना ठीक नहीं होगा। ज़रूर वहाँ पर कोई ऐसी वैसी बात है, लेकिन मैं अपना सामान भी तो वहीं भूल आया था। पूरी रात इसी वजह से मैं बेचैन रहा। सुबह जैसे ही उजाला फैला, पहली फुर्सत में उस दरख्त के पास पहुंचकर अपना सामान जमा किया और उसे घर ले आया। लेकिन दूसरे दिन वडेरा मुझ पर चीख रहा था, इसका मतलब है कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे। देखो, मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। इस गांव में नौजवानों की कमी नहीं है जो मेरी खिदमत गुजारी करे। तुम मेरी एक बात नहीं मान रहे। मैं लजाजत से कहने लगा, साईं मैं क्या करूं? जब भी मैं उस दरख्त के करीब जाता हूं
वहां से अजीब व गरीब सी आवाजें आती हैं। वडेरा गुस्से से कहने लगा, इसका मतलब है कि तुम भी गांव के दूसरे लोगों की तरह तवहुम परस्ती का शिकार हो। देखो, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर कल रात तुमने मेरा काम नहीं किया तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं जानता था कि वो एक सख्त मिजाज आदमी है। अगर उसके मिजाज के खिलाफ कोई बात हो गई तो वो मेरी तनख्वाह भी नहीं देगा। यही सोचकर मजबूर होकर मैं घर चला आया, लेकिन आज रात में अपने इरादे पर अमल करने का सोच रहा था। फिर रात को गांव वालों से छुपकर मैं खेतों में जा पहुंचा। आज फिर सामान मेरे हाथ में था। जैसे ही मैंने वहां सामान रखा, अचानक ही एक अजीब सी आवाज आई, अगर इस दरख्त को काटोगे तो बहुत बड़ा नुकसान उठाओगे। मैं सहम कर इधर उधर देखने लगा। जिसकी आवाज आई थी वो सामने तो आई ही नहीं थी। जैसे ही मैं दरख्त के नजदीक बढ़ा, अचानक ही वहां बैठी एक लड़की मुझे अपने सामने दिखाई दी। लड़की के बाल नीचे जमीन को छू रहे थे। मैं दहशत ज़दा सा उस लड़की को देखने लगा। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? तभी अचानक उसने अपने चेहरे से बाल हटाए। कल की निस्बत आज वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, इतनी खूबसूरत कि उसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। लेकिन मैंने देखा कि उसकी आंखों में आंसू थे। उसके आंसू पूरे चेहरे पर फैले हुए किसी दर्द का इजहार कर रहे थे। तभी उसने अपनी खूबसूरत आंखें उठाकर मुझे देखा और कहने लगी, इस दरख्त को काटने से पहले मुझे आज़ादी दिला दो, वरना मैं हमेशा के लिए बेमौत मारी जाऊंगी। मैं उसकी ये अजीब सी बात सुनकर हैरान रह गया था। हैरत से उससे पूछने लगा, लेकिन तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? तभी वो रोते हुए कहने लगी, मैं इस दरख्त की कैदी हूँ। तुम्हें यकीन नहीं आएगा, लेकिन पिछले 20 सालों से मुझे यहाँ पर कैद किया गया है। मैं आज़ादी पाने के लिए तड़प रही हूँ। आज तुम इस दरख्त को काटकर इसकी बाकियात न जाने किस नहर में फेंक दोगे। उसके साथ मेरी ज़िंदगी का खात्मा भी हो जाएगा। इसलिए मुझे आज़ादी दिलाकर मुझे ज़िंदगी का एहसास दिलाओ। ये एहसान मैं सारी ज़िंदगी याद रखूंगी। लेकिन तुम्हें यहाँ किसने कैद किया है और तुम हो कौन? अभी भी मैंने उससे सवाल पूछना नहीं छोड़ा था, क्योंकि मैं उसके बारे में जानना चाहता था। तभी वो कहने लगी, मैं एक जिनजादी हूँ। मुझे यहाँ पर तुम्हारे ही गांव में रहने वाले एक मक्कार आमिल ने कैद किया है, क्योंकि मैंने उसकी बात मानने से साफ इनकार कर दिया था। तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी कि वो आमिल जो इस गांव का एक मुअज़्ज़िज़ आदमी बनकर यहाँ की नौजवान औरतों का इलाज करता है, वो एक घटिया और शैतान सिफत इंसान है। उसने ना सिर्फ मुझसे बल्कि मेरे अलावा 3 और जिनजादियों से भी शादी कर रखी है, और वो मुझसे भी शादी करना चाहता था, लेकिन मैंने उसकी बात मानने से साफ इनकार कर दिया। यही वजह थी कि उसने गुस्से में आकर मुझे इस दरख्त में कैद कर दिया। मैं हैरत से उसकी बात सुन रहा था। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। ये जिस आमिल का जिक्र कर रही थी, वो आमिल एक बूढ़ा आदमी था जिसकी उम्र 40 साल के करीब थी। वो जद्दी पुश्ती रईस था। मैं हैरान होकर सोचने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो आमिल जिसका नाम पीर बाबा था, गांव वाले सब उसे पीर बाबा के नाम से ही पुकारते थे, वो इस कदर घटिया भी हो सकता है। मैं उसे कहने लगा, लेकिन उसने तो किसी से शादी ही नहीं की, वो तो अपने बड़े से घर में बिल्कुल अकेला रहता है। तो वो कहने लगी, मैं झूठ नहीं कह रही, सच में ही उस मक्कार आमिल ने मुझे इस दरख्त में कैद किया है। अगर उसने शादी नहीं की तो इसकी वजह यही है कि वो जिनजादियों से शादी करता है, और इसके बाद वो अपनी ताकतें बढ़ाने के लिए उन्हें इस्तेमाल करता है। यही वजह है कि उसके पास दौलत का कोई ठिकाना नहीं। लेकिन मैंने उसकी बात मानने से साफ इनकार किया तो उसने मुझे इस दरख्त का कैदी बना दिया, और मुझे यकीन है कि तुम मुझे यहाँ से रिहाई दिला दोगे। इसके बाद भले ही इस दरख्त को काट देना, लेकिन मुझे यहाँ से आज़ादी चाहिए। अगर तुमने इस दरख्त को काट दिया और मुझे आज़ादी ना मिली तो मैं मर जाऊंगी। लेकिन तुम्हें आज़ादी दिलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तभी वो कहने लगी, तुम्हारे पास सिर्फ एक रात का वक्त है। मैं जानती हूँ कि वो जालिम आदमी जिसने तुम्हें ये दरख्त काटने का कहा है, वो किस कदर जालिम है। वो तुम्हें सज़ा देगा क्योंकि तुमने उसकी बात नहीं मानी। लेकिन इससे पहले ही तुम मेरा काम करके मुझ पर एहसान कर दो। मुझे आज़ादी दिलाओ ताकि मैं यहाँ से आज़ाद होकर अपने कबीले में वापस चली जाऊँ। मैं इतने सालों से अपने सारे कबीले से दूर तन्हा ज़िंदगी गुजार रही हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें आज़ादी दिलाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे कोई हरबा बताओ जिससे तुम्हें आज़ादी मिल जाए। वो कहने लगी,
कि तुम्हें उसी आमिल के घर जाना होगा। वहां पर रखी हुई एक काले रंग की हंडिया जो उसने 20 साल पहले एक अमल करके अपने पास रखी हुई थी, उसी हंडिया में मेरी एक कीमती अंगूठी है। वो अंगूठी मेरे लिए इस कदर अजीज थी क्योंकि उसे मेरे वालिद साहब ने मुझे दिया था। उस अंगूठी और मेरे कपड़ों पर अमल करके आमिल ने मुझे यहाँ इस तरफ में कैद कर दिया, जबकि वो अंगूठी और कपड़े उसने हंडिया में रख दिए। इसके बाद हमेशा के लिए उस हंडिया का मुंह बंद कर दिया। तुम किसी तरह मुझे वो मेरी अंगूठी लाकर दे दो तो हो सकता है कि मुझे यहाँ से आज़ादी मिल जाए। लेकिन वो हंडिया उसने न जाने कहाँ छुपा रखी है, मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। अब मैं परेशान सा हो गया। उस पीर बाबा के घर जाना और उस हंडिया के बारे में पूछना तकरीबन नामुमकिन था, लेकिन फिर भी मैं उस जिनजादी की मदद करने के लिए तैयार था क्योंकि उसे रोता हुआ देखकर मुझे उस पर बहुत तरस आया था। अब मैं घर चला आया। मैंने उस दरख्त को काटने का इरादा मुलतवी कर दिया था। दूसरे दिन वडेरे ने फिर मुझे अपनी हवेली में बुलाया था। और कितने दिन लगाएगा बशीर अहमद? देख, मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। तू मुसलसल मेरे हुक्म की नाफरमानी करता जा रहा है। मैं लजाजत से कहने लगा, कल रात मैं दरख्त काट रहा था, लेकिन मुझे गांव के 2 आदमियों ने देख लिया। उन्होंने मुझसे खूब लड़ाई झगड़ा किया, इसीलिए मैं घबरा कर घर चला आया। मैंने साफ झूठ से काम लिया था। वडेरा गुस्से से उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, मुझे उन आदमियों का नाम बता, मैं अभी उनका हशर बुरा कर दूंगा। कौन थे जो मेरी ज़मीनों पर आकर तुझसे झगड़ा कर रहे थे? अब मैं घबरा गया कि मैं किसका नाम लूं। फिर मैं वडेरे से कहने लगा कि अंधेरे के बाइस मैं उनकी शक्ल नहीं पहचान सका था, लेकिन आप फिक्र ना करें, अब ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं रात को 1 बजे खेतों में जाकर उस दरख्त को काट डालूंगा, फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसी तरह वडेरे को समझा बुझाकर मैं घर चला आया था। मेरा इरादा पीर बाबा के घर जाने का था, इसलिए मैं घर गया तो अम्मा दोपहर की रोटी पका रही थी। मैं बातों ही बातों में अम्मा से पूछने लगा कि अम्मा, पीर बाबा के घर कौन कौन होता है? तो वो कहने लगी, अरे हम तो शुरू से ही उसे अकेले देखते आए हैं, ना तो वो घर में किसी को आने देता है और ना ही खुद किसी के घर आता जाता है। हाँ, गांव की औरतों का इलाज ज़रूर करता है, वो भी अपने आस्ताने में। अब मैं समझ गया कि वो जिनजादी बिल्कुल ठीक कह रही थी। तभी मैं अम्मा से कहने लगा कि अम्मा, पीर बाबा ने शादी क्यों नहीं की आखिर? आपने भी एक अरसा इस गांव में गुजारा है। तो अम्मा कहने लगी, अरे वो अपनी जवानी में तो बड़ा खूबसूरत था। कहते हैं कि उसके ऊपर कई जिनजादियाँ आशिक थीं और उन्हीं की मदद से आज ये इस कदर पहुंचा हुआ आमिल बना है कि बड़े से बड़ा अमल चुटकियों में कर लेता है। इसीलिए तो ये ना सिर्फ इस गांव में बल्कि दीगर कई गांव में भी मशहूर है। हाँ, लेकिन मैं उस पीर बाबा के मुताल्लिक सब जान गया था कि उसने किसी औरत से नहीं बल्कि जिनजादियों से शादी की है और इसी जुर्म की पादाश में उसने उस जिनजादी को कैद करके रखा जो पिछले 20 सालों से वहाँ पर उस कैद की सज़ा भुगत रही है। लेकिन मैं हर सूरत में उसे इस कैद से आज़ादी दिलवाना चाहता था। फिर खाना खाकर मैं पीर बाबा के घर पहुँच गया। मुझे उसके आस्ताने में भी जाने से डर लग रहा था क्योंकि वहाँ पर सिर्फ औरतें आती थीं। अब मैं परेशान सा हो गया कि मैं किस तरह पीर बाबा के घर जाऊं। मैंने देखा कि आस्ताने पर रश था। सारी औरतें जैसे गांव की उमड़ आई थीं। हर रोज़ वहाँ पर ऐसे ही रश रहता था। अचानक ही मेरे जहन में ख्याल आया कि अगर पीर बाबा आस्ताने में है तो उसका घर यकीनन खाली पड़ा होगा। यही सोचकर मैं फ़ौरन ही उसके घर जाने का सोच रहा था। ऐसे में मैंने देखा कि उसके घर के बड़े से दरवाजे पर ताला पड़ा था। अंदर यकीनन कोई भी नहीं था। मेरे पास अच्छा मौका था। मैं उसके घर के अंदर जाकर वो हंडिया तलाश कर सकता था जिसका मुझे उस जिनजादी ने बताया था। अब मैंने इधर उधर देखा, गांव की इस गली में कोई भी नहीं था। मैं बआसानी दीवार कूदकर अंदर जा सकता था और फिर मैंने ऐसा ही किया। अब मैं उस घर के अंदर आ गया था जो अंदर से बहुत ही आलीशान था। इत्तेफाक से सारे घर के दरवाजे खुले पड़े थे, लेकिन अजीब सी वीरानी और खौफनाक सन्नाटा चारों तरफ छाया हुआ था। अब मैं एक एक कमरे की तलाशी ले रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई खौफनाक साया मेरा पीछा कर रहा हो। जैसे ही मैं पलटकर देखता तो पीछे कोई भी नहीं होता था। मैं हैरान भी हुआ कि आखिर मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। मैं जल्द से जल्द सारे कमरों की तलाशी ले रहा था, लेकिन एक कमरे की तलाशी लेते वक्त तो मुझ पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े, क्योंकि वहाँ पर रखे हुए कीमती जेवरात देखकर
मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई थी। ये आमिल बाबा तो हद से ज्यादा अमीर था। यकीनन उसने अपनी जिंदगी में बहुत सी दौलत जमा की थी। यही वजह थी कि आज वडेरा भी उसकी इज्जत करता था, उसकी शान शौकत की वजह से। लेकिन कमरों की तलाशी लेने के बावजूद भी मुझे वो हंडिया कहीं नजर न आई। अब मैं मायूस हो चला था। अचानक ही मुझे दूर एक कोठरी सी नजर आई। ये एक खुफिया कमरा था जिसके दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। मैं उस कोठरी में जाने की सोच रहा था, लेकिन फिर ख्याल आया कि इस कदर उजाड़ और वीरान जगह पर भला वो हंडिया कहाँ से रखी होगी। यही सोचकर मैं मायूसी से वापस पलट रहा था कि अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही मैंने मुड़कर देखा, मेरे सामने सफ़ेद लिबास में मलबूस एक अजनबी खड़ा था। उसे देखकर मैं खौफजदा हो गया। मैं समझ गया कि ये उस पीर बाबा का कोई चौकीदार है जिसने मुझे इस घर में घुसते हुए देख लिया है। मेरा खौफ से पीला पड़ता चेहरा देखकर वो कहने लगा, घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। मैं उससे पूछने लगा कि वो कौन है। तभी वो कहने लगा कि मैं एक जिनजात हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम किस वजह से यहाँ आए हो, क्योंकि मैंने तुम्हारी और उस जिनजादी की सारी गुफ्तगू सुन ली थी। लेकिन तुम यहाँ मेरे सामने क्यों आए हो? मैं घबराकर उससे पूछने लगा तो वो कहने लगा, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ, क्योंकि वो जिनजादी हमारे कबीले की है। अगर तुमने इस कोठरी की तलाशी नहीं ली तो तुम बहुत नुकसान उठाओगे, क्योंकि वहीं पर वो हंडिया मौजूद है। मैं यहाँ पर अंदर नहीं आ सकता था, लेकिन आज जब तुम इस जिनजादी की मदद करने के लिए इस घर के अंदर आए तो मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आ गया। इसीलिए मैं इस कोठरी की तरफ नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ पर एक सख्त अमल किया गया है जो सिर्फ हम जन्नात के ऊपर होता है। तुम्हारा मतलब है कि वो हंडिया इस कोठरी में है? मैं हैरत से उससे पूछने लगा तो उसने हाँ में सर हिलाया और कहने लगा, हाँ, वहीं पर वो हंडिया मौजूद है, लेकिन पीर बाबा के आने का वक्त हो गया है, इसीलिए तुम जल्दी से जाकर वो हंडिया ले आओ। एकदम से ही मुझे बताकर वो मेरे सामने से गायब हो गया। अब मैं पागलों की तरह उस कोठरी की तरफ भागा था। इससे पहले कि पीर बाबा अपने घर में दाखिल हो जाए, जल्दी से मैं उस कोठरी की तलाशी लेने लगा जिसमें बेपनाह काट कबाड़ रखा था। ऐसे में उस हंडिया को तलाश करना तकरीबन मेरे लिए नामुमकिन था। मैं पागलों की तरह सारे सामान को इधर उधर पटक रहा था। तभी मेरी नज़र एक पुराने संदूक पर पड़ी। मुझे यकीन था कि वो काले रंग की हंडिया ज़रूर इसी में मौजूद होगी। जैसे ही मैंने उस संदूक को खोला तो मेरे होश उड़ गए। मेरा यकीन सही साबित हुआ, क्योंकि सच में ही वो काले रंग की हंडिया यहीं पर रखी थी। मैं उसे देखकर बेतहाशा खुश हो गया था। फिर जैसे ही मैंने उस हंडिया को उठाया, अचानक ही मैंने गेट खुलने की आवाज़ सुनी। मैं ये देखकर डर गया कि पीर बाबा अंदर आ गया था। यकीनन उसके घर आने का वक्त हो गया था। अब खौफ के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अचानक ही पीर बाबा बड़बड़ाता हुआ इस तरफ आया और कहने लगा, अरे ये गेट कैसे खुल गया? यकीनन मेरी ही गलती की वजह से खुला रह गया होगा। ये कहते के साथ ही उसने कोठरी का दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं तो जैसे उस कोठरी में कैद होकर रह गया था। हंडिया तो मिल गई थी, लेकिन मैं इसमें कैद हो गया था और मुझे यकीन था कि आज रात वो जिनजादी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। अब मैं शदीद घबराहट का शिकार था और खौफजदा भी कि मैं इस कोठरी से बाहर कैसे निकलूंगा। यूं आधी रात गुजर गई। पीर बाबा तो अंदर चला गया, लेकिन मैं उस कोठरी में कैद होकर रह गया था। लेकिन जैसे ही रात के 12 बजे अचानक ही मुझे एक काला सा साया नजर आने लगा। मैं उस काले साए को देखकर डर गया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसने एक इंसानी शक्ल इख्तियार कर ली। मैं उसे देखकर हैरान रह गया था, क्योंकि वो एक जिनजात था। ये वही था जिसने मेरी मदद करके मुझे यहाँ तक पहुँचाया था। फिर वो मुस्कुराते हुए मुझे देखकर कहने लगा, मुझे खुशी है कि तुम कामयाब हो गए हो, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। आओ मैं तुम्हें इस कोठरी से बाहर निकालने में तुम्हारी मदद करूँ। ये सुनकर मैं खुश हो गया था। मैं जानता था कि वो एक ताकतवर जिनजात है, वो अपनी ताकत से कुछ भी कर सकता है। अब मैं जल्दी से उसके पीछे पीछे आने लगा। उसकी ताकत से वो दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया था। मैंने देखा कि इस पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ था, जबकि पीर बाबा के कमरे में रोशनी की झलक थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो अभी तक जाग रहे हैं। पूरे चांद की रात थी, इसीलिए चांद की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। तभी वो जिनजात मेरे कानों में सरगोशी करते हुए कहने लगा, पीर बाबा इस वक्त अमल कर रहा है।
इसीलिए वो तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं। तुम खामोशी से इस घर से बाहर चले जाओ। हम चुपके से इस घर से बाहर निकल आए थे। गो के मैंने दरवाज़ा खोल लिया था, लेकिन मुझे फिर भी डर लग रहा था। गांव की गलियों से होता हुआ अब मैं खेतों की तरफ जा रहा था। हंडिया मेरे पास ही थी। मेरा पूरा दिन और पूरी रात यहीं पर गुजर गए थे। ऐसे में अगर मैं घर नहीं गया तो अम्मा न जाने बेचारी क्या क्या सोचकर परेशान होती रहेंगी। यही सोचकर मैं घर जाने का सोचने लगा, लेकिन अचानक ही मेरे कानों में एक सरगोशी सुनाई दी। घर जाने के बजाय वहीं पर जाओ जहां पर वो जिनजादी तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं समझ गया कि ये कोई और नहीं बल्कि वही जिनजाद मुझसे कह रहा है। यूं मैं उसकी बात पर अमल करने के लिए खेतों की तरफ चला गया। मैं जानता था कि सिर्फ आज की रात मेरे पास है, इसके बाद मेरे लिए बहुत परेशानी हो जाएगी और इस दरख्त को काटना भी मेरे लिए ज़रूरी था, वरना वडेरा मुझसे नाराज़ हो जाता। यही सोचकर मैं तेज़ तेज़ कदमों से चलता हुआ खेतों की तरफ चला आया। यहाँ पर भी सन्नाटा छाया हुआ था। रात का 1 बज रहा था, इसलिए सारे गांव के लोग गहरी नींद सोए हुए थे। ऐसे में मैं जानता था कि मेरी माँ मेरा इंतज़ार शिद्दत से कर रही होगी। वो ये सोचकर परेशान होगी कि मैं अभी तक घर क्यों नहीं आया। तेज़ तेज़ कदमों से चलता हुआ मैं उस दरख्त के सामने आ गया था, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र उस शाख पर पड़ी, सफ़ेद लिबास में मलबूस उसी जिनजादी को देखकर मेरे होश उड़ गए थे। वो पूरी शिद्दत से मेरा इंतज़ार कर रही थी। मुझे देखकर खुश हो गई। फिर मैंने जैसे ही हंडिया को खोला, उसमें रखी हुई वो खूबसूरत हीरे की अंगूठी मुझे नजर आई थी। मैं जानता था कि उस पर ही वो अमल किया गया है, और जैसे ही मैं उस अंगूठी को जिनजादी के हवाले करूंगा, जिनजादी खुद ब खुद उस दरख्त की कैद से आज़ाद हो जाएगी। यूं मैं फुर्ती से उसके पास गया और मैंने वो अंगूठी उसके सामने रख दी। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक सफ़ेद रोशनी की तरह वो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई, लेकिन आज उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मैं उसकी मुस्कुराहट देखकर हैरान रह गया। वो बहुत खुश नजर आ रही थी। ऐसे लग रहा था उसे कैद से आज़ादी मिल गई हो। फिर वो कहने लगी, नौजवान, तुमने मेरी मदद करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है और मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला ज़रूर चुकाऊंगी। तुमने आज मुझे इस दरख्त की कैद से आज़ाद कर दिया जहाँ पर मैं पिछले 20 बरस से कैद थी। कोई भी इस दरख्त की तरफ आता भी नहीं था, लेकिन तुम इस तरफ आए और तुमने मेरी मदद की, जिसकी मुझे बहुत खुशी है। अभी तो मैं अपने कबीले में वापस जा रही हूँ, लेकिन मुझे ज़िंदगी में कभी भी मौका मिलेगा तो मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला ज़रूर चुकाऊंगी। ये कहने के साथ ही वो मेरे सामने से गायब हो गई। मुझे बहुत खुशी हुई थी। फिर मैं पूरी रात मेहनत करता रहा। आखिरकार वो दरख्त कट गया था। सुबह ही सुबह मैं वडेरे के पास पहुंच गया और मैंने उसे खुशखबरी सुनाई कि मैं उस दरख्त को काटने में कामयाब हो गया हूँ। दूसरी तरफ गांव के सारे लोग जमा हो गए थे। सब मुझ पर थू थू कर रहे थे कि वो दरख्त जो पिछले 1000 साल से इस गांव में मौजूद था, वो तुमने एक लम्हे में काट दिया। तुमने हमें धोखा दिया है। अब मैं उन्हें कैसे समझाता कि मुझे उस दरख्त को काटने के लिए वडेरे ने कहा था, और अगर मैं उसकी बात नहीं मानता तो वो मुझे नौकरी से निकाल देता, बल्कि वो तो इस गांव से भी निकालने की धमकी दे रहा था। मैंने किसी से एक लफ्ज़ भी नहीं कहा था, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे सारे गांव के लोग मुझसे नाराज़ हो गए हों। अम्मा कहने लगी, तुमने सारे गांव की नाराज़गी मोल लेकर इस दरख्त को काटने का फैसला क्यों किया? मुझे भी इस बात का अफसोस था, लेकिन मैं क्या करता। गांव के वडेरे ने मुझे मजबूर किया था। मैंने जो उससे कर्जा लिया था वो उसने बदले में माफ़ कर दिया था, लेकिन मैं खुश था कि मैंने उस जिनजादी को आज़ादी दिला दी थी। शुक्र था कि मुझसे ऐसा कोई गुनाह नहीं हुआ था। अगर मैं उस दरख्त को काट कर किसी नहर वगैरह में बहा देता तो शायद उस जिनजादी की जान भी चली जाती, लेकिन मैं उसकी जान बचाने में कामयाब हो गया था। फिर मामूल के मुताबिक मैंने अपना काम शुरू कर दिया, लेकिन गांव के अक्सर लोग मुझसे नाराज़ थे। एक दिन वडेरे ने मुझे कहा कि मैं इस गांव को छोड़कर चला जाऊं। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गया था। वो कहने लगा, मैं गांव वालों के हाथों मजबूर हूँ, क्योंकि तुमने वो दरख्त काट डाला। उस दरख्त पर पीर बाबा ने कुछ अमल किया था, इसी वजह से वो गांव के लोगों से नाराज़ हो गया है, जबकि गांव की औरतों का कहना है कि उसने हमारी सारी अमलियात रोक दिए हैं, जिसकी वजह से हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहे। इसीलिए ज़रूरी होगा कि मुझे पीर बाबा की नाराज़गी की खातिर तुम्हें इस गांव से बाहर निकालना होगा।
मैं वडेरे की बात पर हैरान रह गया था। उसी की वजह से तो मैंने वो दरख्त काटा था और अब वो पीर बाबा की खातिर मुझे इस गांव से निकाल रहा था। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने उसकी लाख मिन्नतें की, लेकिन उसने मेरे हाथ में चंद हजार रुपए रखे और मुझे ये गांव छोड़ने का कह दिया। जब मैंने ये बात अम्मा को बताई तो वो शदीद सदमे की कैफियत में मुब्तला हो गई थी, क्योंकि अम्मा तो बचपन से ही यहीं रही थी। अब्बा से उनकी शादी यहीं हुई थी। मैं कहने लगा, अम्मा मैं मजबूर हूँ। अम्मा कहने लगी कि तूने गांव के लोगों को उस वडेरे की असलियत क्यों नहीं बताई, सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर क्यों ले लिया। अब मैं उन्हें कैसे बताता कि मैं उसी की वजह से मजबूर हुआ था, क्योंकि मैंने उससे कर्जा ले रखा था। लेकिन अब उसकी बात मानना ज़रूरी हो गया था, इसीलिए मैंने चुपचाप रात के अंधेरे में वो गांव छोड़ दिया। मेरे पास ना तो इतने पैसे थे और ना ही कोई साजो सामान जिससे शहर में जाकर मैं अपनी नई जिंदगी का आगाज करता। लेकिन फिर भी हिम्मत हौसला करके मैं शहर की तरफ जा रहा था। मैं शहर जाने वाली बस में सवार हुआ और अपनी माँ को लेकर शहर चला आया। ये जगह मेरे लिए बिल्कुल नई थी। मैं भला मकान कहाँ से हासिल करता। पागलों की तरह सड़क पर मारा मारा फिरता रहा। चंद हजार रुपए मेरे हाथ में थे और थोड़ा सा सामान। फिर मैंने कोशिश करके एक कच्चा सा मकान ले लिया। उसमें एक ही कमरा था, लेकिन ये मकान बहुत पुराना लग रहा था। अभी हमारी इस घर में पहली ही रात थी कि अचानक एक औरत आकर अम्मा से कहने लगी, बहन तुमने ये मकान क्यों लिया है? तुम नहीं जानती कि ये मकान तो पिछले 10 सालों से बंद पड़ा है और इस मकान में जिन्नात का बसेरा है। ये सुनकर तो अम्मा का चेहरा खौफ से पीला पड़ गया था, जबकि मैं बिल्कुल खामोश था। मुझे उनसे जरा भी डर महसूस नहीं हुआ था। उनका नाम सुनते ही अचानक मुझे वही जिनजादी याद आई थी। मैं दिल में सोचने लगा कि अगर यहाँ कुछ ऐसा वैसा है तो मुझे ज़रूर कुछ महसूस होगा। तभी उसी रात मैं दिल ही दिल में उस जिनजादी को याद करते हुए सो गया था। लेकिन मैं नहीं जानता था कि वो आधी रात को मेरे सामने हाजिर हो जाएगी। मैं रात को गहरी नींद सो रहा था जब ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे जगाने की कोशिश कर रहा हो। मैंने जैसे ही आंखें खोली तो वो मेरे सिरहाने खड़ी थी और मुस्कुराती हुई नजरों से मुझे देख रही थी। उसे अपने सामने देखकर मैं हैरान रह गया था। मैं हैरत से उसे कहने लगा, तुम यहाँ? तो वो कहने लगी, हाँ, जब तुमने मुझे दिल से याद किया तो मैं तुम्हारे सामने हाजिर हो गई। वो औरत बिल्कुल ठीक कह रही थी। यहाँ पर हमारे कबीले के कुछ जिन्नात आबाद थे, लेकिन मैंने उनसे कह दिया है कि वो इस घर को छोड़कर चले जाएं, क्योंकि तुमने भी मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया था। इसीलिए मैं तुम्हें कोई तकलीफ, कोई दुख नहीं देना चाहती। मैं जानती हूँ कि आज तुम्हारे हालात बहुत ख़राब हैं, लेकिन मैं तुम्हारी ज़िंदगी ऐसे बदलूंगी कि किसी को खबर भी नहीं होगी। उसकी बात ने मुझे खुश कर दिया था। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कोई मेरे साथ मौजूद है। मैं इस दुनिया में तकलीफ़ें उठाने के लिए अकेला नहीं हूँ। लेकिन जैसे ही सुबह आँख खोली तो अम्मा कहने लगी, मुझे इस घर में अजीबो गरीब सी आवाज़ें आ रही थी। ऐसे लगता है कि हमें ये घर छोड़ देना चाहिए। मैं अम्मा को समझाते हुए कहने लगा कि ऐसा कुछ नहीं है, आपने उस औरत की बातों को अपने जहन में सवार कर लिया है। अम्मा ये सुनकर खामोश हो गई। फिर मैं नौकरी ढूंढने के लिए बाहर चला आया। फैक्ट्री में तो नौकरी मिलना नामुमकिन था, क्योंकि मेरे पास ना तो कोई तालीम थी और ना ही कोई हुनर। पूरा दिन सड़कों पर जूतियां पटकता रहा। मुझे कहाँ से नौकरी मिलती? घर जाने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। फिर ये सोचकर कि अम्मा घर पर अकेली होंगी, मैं रात के अंधेरे में घर की तरफ जाने लगा। लेकिन अचानक किसी ने मुझे पीछे से आवाज़ दी। जैसे ही पलटकर देखा तो अपना पीछा करती उस जिनजाती को देखकर मैं हैरान रह गया था, जो मुस्कुराती हुई नज़रों से मुझे देख रही थी। फिर वो मुझसे कहने लगी, मैं जानती हूँ कि तुम नौकरी तलाश कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें उससे भी बड़ा इनाम देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम इस शहर के सबसे अमीर आदमी बनो, इसीलिए मैं तुम्हें कामयाब होते देखना चाहती हूँ। मैं मायूसी से कहने लगा कि तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास तो इस वक्त फूटी कौड़ी भी नहीं है। तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, मैं हूँ ना तुम्हारी मदद करने के लिए। मेरे पास बहुत सी दौलत है जो तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है। ये कहने के साथ ही उसने एक लाल रंग की पोटली मुझे थमाई। मैं हैरत से उसे देखते हुए कहने लगा, इसमें क्या है? तो वो कहने लगी, तुम्हारी ज़िंदगी बदलने के ख्वाब और भी बहुत कुछ है जो तुम अपनी ज़िंदगी में हासिल कर सकते हो।
اس لیے کبھی اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھنا۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی وہ میرے سامنے سے غائب ہو گئی۔ اب میں حیرت سے اس لال رنگ کی پوٹلی کو اپنے ساتھ گھر لے آیا تھا۔ اماں نے پوچھا کہ مجھے نوکری ملی یا نہیں، تو میں نے کہہ دیا کہ مجھے نوکری نہیں ملی، لیکن میں کمرے میں چپکے سے آ کر وہ پوٹلی کھول کر دیکھنے لگا اور مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ وہ تو پوری سونے سے بھری ہوئی تھی۔ اس میں رکھے سونے کے خوبصورت زیورات دیکھ کر مجھے بے پناہ حیرت ہوئی تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ بے قراری سے میں نے اماں کو جا کر پوٹلی دکھائی تو اماں کہنے لگی، اتنے سارے زیور تیرے پاس کہاں سے آئے؟ کہیں تو نے کوئی چوری وغیرہ تو نہیں کی؟ میں مسکراتے ہوئے کہنے لگا، نہیں اماں، ابھی تیرا بیٹا اتنا بہادر بھی نہیں ہوا کہ چوری ڈکیتیاں کرنے لگے، بس یوں سمجھ کے کہ کسی نے ہماری مدد کی ہے۔ وہ بھی ان زیورات کو دیکھ کر بہت خوش ہو گئی تھی۔ پھر ہم دونوں ماں بیٹے نے ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ میں نے جنزادی کی دی ہوئی اس دولت سے اپنا بہت بڑا کاروبار شروع کر دیا تھا اور اس چھوٹے سے گھر کو چھوڑ کر شہر کے اچھے سے علاقے میں ایک بڑا سا گھر کرائے پر خرید لیا تھا۔ لیکن میری خواہش تھی کہ ایک دن میں اپنا گھر بھی بنا لوں، اسی لیے میں جلد از جلد اپنا گھر بنانا چاہتا تھا۔ میں نے جو کاروبار شروع کیا تھا وہ دن رات خوب ترقی کر رہا تھا۔ سب حیران تھے کہ کون اتنا امیر تاجر آیا ہے جس نے شہر میں سب سے بڑی دکان قائم کی ہے۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے میری دکان خوب چلنے لگی۔ پل بھر میں گھر کے حالات ایسے بدلے کہ مجھے خود بھی پتہ نہ چلا۔ اب میری شہرت دور دور تک پھیل گئی تھی۔ پھر میں نے اپنا گھر بھی بنانا شروع کر دیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اماں، جس نے ہمیشہ غربت بھری زندگی گزاری تھی، اپنی زندگی کی کوئی خواہش پوری نہیں کی تھی، میں چاہتا تھا کہ میں ان کے سارے خواب پورے کروں۔ پھر ایک رات میں گھر کی طرف آ رہا تھا جب مجھے اپنے پیچھے پائل کی چھن چھن کی آواز سنائی دی۔ میں سمجھ گیا کہ کوئی میرے پیچھے ہے، اور یہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی جنزادی تھی۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا، وہ مسکراتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ آج نہ جانے کیوں اسے اپنے سامنے دیکھ کر میں ذرا بھی خوفزدہ نہیں تھا۔ پھر وہ کہنے لگی، تمہاری زندگی تبدیل ہوتے دیکھ کر میں بہت خوش ہوں۔ کبھی تم نے بھی میری ایسے ہی مدد کی تھی۔ میں 20 سالوں سے قید کاٹ رہی تھی، لیکن جس دن آزادی ملی اس دن مجھے اپنی زندگی کا احساس ہوا، اور آج دیکھو میں کس قدر خوش ہوں۔ آزادی پا کر تو ہر انسان خوش رہتا ہے، اسی طرح میں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہو گئی ہوں۔ میں اسے کہنے لگا کہ تم نے میری زندگی پر بہت بڑا احسان کیا ہے، اس لیے میں یہ احسان ساری زندگی یاد رکھوں گا۔ یہ سن کر جنزادی خوش ہو گئی، پھر کہنے لگی، اس لیے کہ تم ایک بہادر نوجوان ہو جس نے میری مدد کی، اس پیر بابا کے گھر گئے اور وہ ہنڈیاں حاصل کی۔ یہ کرنا واقعی ہی ایک مشکل کام تھا، لیکن پھر بھی تم نے میری مدد کی۔ اس کی بات سن کر مجھے وہی جنزاد یاد آیا تھا جس نے میری مدد کی تھی۔ نہ جانے وہ کون تھا اور اس جنزادی کی مدد کیوں کرنا چاہتا تھا، یہ سوال میرے من میں ابھی اٹھا تھا۔ پھر جنزادی کہنے لگی، اب میں اپنے قبیلے میں واپس جا رہی ہوں، لیکن جب جب تمہیں میری مدد کی ضرورت ہوگی میں تمہارے سامنے حاضر ہو جاؤں گی۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی وہ میرے سامنے سے غائب ہو گئی تھی۔ اب میں خوشی خوشی گھر آ گیا تھا۔ یوں چند سال گزرے۔ زندگی میں نے بہت کچھ حاصل کر لیا تھا۔ اب میری زندگی میں کوئی کمی نہیں تھی۔ اس بات کی مجھے بہت خوشی تھی۔ یوں اماں اب مجھے کہنے لگیں کہ میں شادی کر لوں، لیکن میرا ابھی شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں شہر کا ایک بہت بڑا کاروباری انسان بن چکا تھا۔ نہ صرف میں نے کئی ضرورت مند لوگوں کو اپنے کاروبار میں شامل کیا تھا، بلکہ کئی لوگوں کو نوکریاں بھی دی تھیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ جتنی بھی دولت میں نے حاصل کی ہے اس سے اکیلا فائدہ اٹھاؤں۔ کئی سالوں بعد میرا دل چاہا کہ میں اپنے گاؤں واپس جاؤں اور جا کر اس وڈیرے سے ملاقات کروں۔ آج وہ میری حیثیت دیکھ کر حیران رہ جائے گا۔ پھر اپنی بڑی سی گاڑی میں بیٹھ کر میں اپنے گاؤں چلا آیا تھا۔ سب لوگ حیرت سے آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھ رہے تھے۔ کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی بشیر احمد ہے جو وڈیرے کی جھڑکیاں کھا کر جوان ہوا تھا، جس نے ہمیشہ وڈیرے کی بات مان کر اپنی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ اس کی بات ماننا اس کے لیے حرف اول تھا، لیکن آج میری اپنی حیثیت تھی۔ میرے پاس گاڑی، کاروبار، ہر چیز وڈیرے کے ہم پلہ تھا۔ گو کے وقت کے ساتھ ساتھ وہ بوڑھا اور کمزور ہو گیا تھا، لیکن مجھے اپنے سامنے دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ پھر میں نے سنا کہ وہ اپنی جوان بیٹی کے لیے پریشان ہے،
کیونکہ وہ اس کے لیے رشتہ تلاش کر رہا تھا۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ میں اس کی بیٹی سے شادی کروں گا۔ یہی سوچ کر جب میں نے وڈیرے سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگا تو اس نے لمحے بھر کے لیے بھی نہ سوچا اور فوراً ہی رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ یہ سن کر میں خوش ہو گیا تھا۔ اب میں وڈیرے کی بیٹی سے شادی کرنے والا تھا۔ تبھی میں گاؤں کے کھیتوں کی طرف چلا آیا پرانی یاد تازہ کرنے کے لیے۔ اچانک ہی میری نظر اسی درخت پر پڑی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ درخت آج بھی اپنی پوری آب و تاب سے کھڑا تھا، حالانکہ میں نے تو اسے اپنے ہاتھوں سے کاٹ ڈالا تھا۔ جب میں نے پاس سے گزرتے ایک نوجوان سے اس کے بارے میں پوچھا کہ یہ درخت تو کئی سالوں پہلے خود میں نے اپنے ہاتھوں سے کاٹا تھا، لیکن آج بھی یہ صحیح سلامت اپنی جگہ پر موجود ہے، تو وہ کہنے لگا ہاں، یہ تو سارے گاؤں والے جانتے ہیں کہ یہ درخت جڑ سے ہی کٹ گیا تھا، لیکن ابھی 3-4 دن ہی گزرے تھے کہ اچانک اس کی جڑیں دوبارہ زمین پر نمودار ہو گئیں اور پھر سے یہ ایک درخت بن گیا۔ لوگوں نے پھر اسے کٹوانے کی کوشش کی، لیکن پھر سے اس کی جڑیں زمین پر نمودار ہو گئیں۔ یوں لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اب اس جگہ پر ہرگز کوئی کام نہیں ہوگا، کیونکہ یہ درخت اور اس کی شاخیں زمین کی گہرائی تک بسی ہوئی ہیں۔ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ یہ درخت اپنی جگہ چھوڑے، کیونکہ گاؤں والوں کا خیال ہے کہ اس درخت پر کسی کا قبضہ ہے۔ اس کی بات سن کر میں مسکرا دیا تھا۔ مجھے بے اختیار وہی جنزادی یاد آئی تھی جو اس درخت کی شاخوں میں قید تھی۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں پھر سے اس پیر بابا نے کسی جنزادی کو قید تو نہیں کر دیا، لیکن جب میں نے اس کے حالات دیکھے تو مجھے بہت افسوس ہوا، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی بہت کمزور ہو گیا تھا۔ اسی لیے میں نے اپنے اس خیال کو ترک کر دیا۔